Yesterday, I have discussed with you India after independence, how Planning Commission adopted this different policies, 5-year plans, and according to that, our India was developed. And but still, after so many years, proper development is not there, and still we are lagging behind. And then I have discussed with you foreign policy. Foreign policy. What was the foreign policy adopted at that time after independence? As I have told you that after Second World War, 1939 to 1945, as Second World War ended, then whole of the world became into two parts, USA and USSR. Means एक तरफ USA और दूसरी तरफ Russia. And when India got independence, so how India adopted his policy. At that time, many countries, they joined either USA or USSR. And these countries, they formed military alliance. And if India will join USA, then maybe threat from India has to face threat from USSR. If India joined USSR, then maybe India had to face threat from USA. So at that time, many countries like India, they decided to become neutral. Neutral का मतलब क्या होता है? Not to join any group, either USA or USSR. So after 1950s, 60s, Cold War. कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है कि वॉर नहीं होती, लेकिन वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो बहुत सी कंट्रीज में रही, पूरा वर्ल्ड अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गया, ठीक है. एंड एट दैट टाइम इंडिया डिसाइडेड टू फॉर्म अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप दैट वाज कॉल्ड NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट. एंड मेनी कंट्रीज, which countries participated in this? Egypt, Yugoslavia, Indonesia, Ghana, India, and so many other countries. Those who the countries became newly independent, यानी कि जो countries newly independent बनी थी, these countries they adopted this non-aligned movement. का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जो ना USA ना USSR किसी को भी पर्टिकुलर जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा, एंड दे रिमेन अलूफ. अलूफ का मतलब होता है कि वो अलग रहेंगे. ऐसा नहीं कि वो दोनों से अलग रहेंगे, दोनों के साथ रिलेशंस मेंटेन करेंगे, लेकिन स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस. नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या है? अलायंस से अलग रहना. अलायंस नहीं बनाना, वैसे सपोर्ट करना, ठीक है ना, तो अलायंस नहीं बनाना, ठीक है. तो दिस वाज द फॉरेन पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडिया एट दैट टाइम. देन इन द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर देयर इज एल्सवेयर स्टोरी ऑफ श्रीलंका, ठीक है. एल्सवेयर स्टोरी ऑफ श्रीलंका मीन्स इसमें हमने ये दिखाना है कि जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ऐसे ही श्रीलंका आल्सो गॉट इंडिपेंडेंस. इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 1947 and Sri Lanka got independence on 1 year after 1948. But when Sri Lanka, the story is totally different. Story from India and Sri Lanka is totally different. Why? Because when Sri Lanka got independence, at that time, elections were conducted in the country. And in these elections, one language, Sinhala, the language of Sri Lanka, Sinhala, these people were in majority. It means in Sri Lanka, when elections held after independence, the people speaking Sinhala, they were in majority and they won elections. They won elections. अब अगर इलेक्शन जीतेंगे तो सिन्हाला जो थे वो मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? रूलिंग पार्टी. इनकी रूलिंग पार्टी बनी. अदर देन दिस, सिन्हाला के अलावा श्रीलंका में और कौन थे? तमिल स्पीक, क्योंकि श्रीलंका तमिलनाडु के साथ है. एंड सो मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया, they went to Sri Lanka during British rule, and at that time in Sri Lanka many people they spoke Tamil also. What Sinhalas, they discriminated Tamils.
ठीक है, उन्होंने क्या किया, तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेट किया। एंड इन्होंने क्या किया, सिन्हालाज ने 1956 में एक एक्ट पास किया। In 1956, Sinhala Act was passed, and according to this, Sinhala became the official language. यानी कि उन्होंने क्या किया, सिन्हाला को कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी फोर्सफुली। यानी कि इसका मतलब क्या है कि पूरी कंट्री की एक ही लैंग्वेज होगी, वो होगी सिन्हाला। अब इमेजिन करो, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ। हमारी कंट्री में नो डाउट हम कहते हैं कि हिंदू जो है मेजोरिटी में थे, हिंदी स्पीकिंग पीपल मेजोरिटी में थे, लेकिन हिंदी लैंग्वेज को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं कि कंपलसरी नहीं किया गया। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या किया, श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज यानी कि 1956 में एक एक्ट बनाया, उसमें सिन्हाला को कंपलसरी कर दिया। एंड तमिल स्पीकिंग जो पीपल थे, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड। गवर्नमेंट जॉब्स, यूनिवर्सिटी पोजीशंस, आपको पता है कि श्रीलंका में जितने भी यूनिवर्सिटी टॉप पोजीशंस होती थी, उसमें जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे, उनके लिए ही जॉब अपॉर्चुनिटीज रखी जाती थी। एंड जो लोग तमिल स्पीकिंग थे, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड। और जिस कंट्री में ऐसा होता है, तो उस कंट्री में ऑटोमेटिकली ग्रुप्स के बीच में आपस में क्या होती है, वॉर। और ऐसा ही क्या हुआ, श्रीलंका में तमिल्स और सिन्हाला के बीच में सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, जब एक ही कंट्री के बीच में लोगों के बीच में अलग अलग जो है वो ग्रुप्स में वॉर होती है, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। तो सिविल वॉर हुई, मैनी पीपल वर किल्ड, ठीक है। एंड सेम अगर देखें दूसरी तरफ, अगर दूसरी तरफ देखें स्टोरी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन सा है, इस्लाम रिलीजन। यहाँ पे श्रीलंका में सिन्हाला तो था ही, लेकिन उन्होंने एक और रिलीजन, बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन बना दी। बुद्धिज्म स्टेट रिलीजन यानी कि कंपलसरी। बुद्धिज्म, जो लोग बुद्धिस्ट थे, उनको जो है वो प्रेफरेंसेस मिली, एंड बाकी रिलीजन्स जो है उनको डिस्क्रिमिनेशन किया गया। सेम ऐसा ही पाकिस्तान में भी है। उर्दू लैंग्वेज पाकिस्तान में है, दैट इज यू कैन से कंपलसरी लैंग्वेज। एंड वहाँ पे रिलीजन क्या है, इस्लाम। जब कंट्रीज में इस तरह से लैंग्वेज या रिलीजन जो है इम्पोज किया जाता है, तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन वी आर वेरी लकी कि हमारी कंट्री में ऐसा सिस्टम नहीं है। वी आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन एंड वी आर फ्री टू ऑप्ट एनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। सो ये जस्ट एक एग्जांपल बताया गया है कि श्रीलंका और पाकिस्तान में किस तरह से प्रॉब्लम आई। अगेन आई एम रिपीटिंग, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन श्रीलंका, व्हेन श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, 1948 के बाद सिन्हाला जो थे वो मेजॉरिटी में थे, एंड दे वन द इलेक्शंस and they discriminated Tamil people in Sri Lanka. Some people they spoke Tamil, so these Tamil speaking people they were exploited by the Sinhalas. अब जब गवर्नमेंट सिन्हालास की थी, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या किया, अपने रिलीजन को मेन फॉस्टर किया, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट किया, और बुद्धिज्म बिकेम द मेन रिलीजन ऑफ द कंट्री। एंड मैनी पीपल दोज हु वर नॉट बुद्धिस्ट और दोज हु स्पोक तमिल्स और एनी अदर लैंग्वेज, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड। एंड द पीपल हु स्पोक सिन्हालास एंड द पीपल हु adopted Buddhist, and they were given preferences in government jobs, and many kind of relaxations were given to them. It means that was a, you can say, discrimination and exploitation of other people. Clear? Similarly, in Pakistan, the language is Urdu and the state religion is Islam, and the other people, those who are Hindu or other people, they are discriminated and exploited still in Pakistan. So in many countries, kind of differences and exploitation and kind of, you can say, differentiation policies are adopted by the government, but in India is not like that. So we are very lucky कि हमारी कंट्री में ये लैंग्वेज सिस्टम जो है वो बेस्ट रखा गया है, ताकि लोगों को जो है वो लैंग्वेज के रिलेटेड फ्रीडम दी जाए। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगेन in this chapter we have covered till now. So I will just give you the guide outlines of the chapter. We have discussed from the beginning of the chapter problems that were faced by the constitution makers or Indian government at that time. Many problems they have to face while making constitution. Then second, features of constitution we have completed. Even हमने ये civics में भी किए हुए हैं कि constitution के जो features हैं. Then third, formation of states. Third topic we have covered, formation of states, how states were reorganized, state commission was formed, and
2 or 3 स्टोरीज हमने बतानी, आंध्र प्रदेश, पाकिस्तान और सॉरी आंध्र प्रदेश एंड पंजाब, ठीक है। तो ये जस्ट हमने बताना है कि किस तरह से ये स्टेट्स उस टाइम पे में बनी थी, प्रिंसली स्टेट्स। देन डेवलपमेंट पॉलिसीज, प्लानिंग पॉलिसीज, प्लानिंग पॉलिसी में हमने प्लानिंग कमीशन, देन 5-year plans 1951, second 5-year plan 1956, and after that many different projects were started in our country, and but still we are facing problems after 60 years of independence in 2007. Then India also faced many problems. They faced many different kind of problems at that time. Then after that, I have discussed with you foreign policy, that we, our country adopted foreign policy, non-aligned movement, NAM, not to join any military group, neither USA nor USSR. So we are, you can say, we have adopted that policy in which we want support from both the countries. We want support from the both countries. So we decided not to join anyone. Okay. So Indian government decided that they will form a movement that was called non-aligned. Non-aligned का मतलब किसी एक की तरफ नहीं झुकना, तो दोनों से ही support लेना, ठीक है। तो that was NAM, non-aligned movement. After that, I have discussed story of Sri Lanka, that how Sri Lankan people in majority Sinhalas, they discriminated Tamil people, and civil war held, and many people were killed from both the communities, Sinhalas and Tamil. तो ऐसी कंट्री जब लैंग्वेज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है तो दोनों का ही लॉस होता है, कंट्री का लॉस होता है। तो गवर्नमेंट को बहुत ध्यान से सोच समझकर पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि लोगों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। इसके बाद now I'm going to discuss question answers with you. We have completed all the questions, but still you should know the answers. So one by one, raise your hand. Name 3 problems that the newly independent nation of India faced. So we have discussed many problems. So you have to write any 3 problems which were faced when our country became independent. Yes, Anmol. हाँ जी बेटा, keep your mic on. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा. The India faced number of the problems after the independence. There was the problem of princely states. Each rule was the state was ruled by a Maharaja or a Nawab, and the new nation had to be adopt a new political system that would best serve the hopes and expectation of its population. It also faced a series of great challenges that after the partition, many refugees had came to the country from Pakistan, and they had to find new jobs and homes. Very good. So other than that, we were facing economic and social disparities, regional disparities were there, caste and communities issues were there, illiteracy, poverty, unemployment, economic factors. So all these problems we were facing when our country got independence. So it's very easy, you can write. Then next question is, what was the role of planning commission? ये प्लानिंग कमीशन का हमने स्टार्ट किया 1950, तो 1950 के बाद का बताना हमने कि प्लानिंग कमीशन ने कैसे अपनी कंट्री को डेवलप किया। यस प्रबल, हाँ जी, कीप योर माइक ऑन। यस मैम। In 1950, the government set up a planning commission to help design and execute the suitable policies for economic development. The commission had to design the rules played by the private players and the government in a system which was to be called a mixed economy system. Mixed economy, very good. Number 1, listen, number 1 1950 प्लानिंग कमीशन, नंबर 2 प्लानिंग कमीशन ने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया? मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में बताना दोनों ही सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट भी होता है और प्राइवेट, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, थर्ड। हाँ जी, थर्ड पॉइंट मैम यही थे, एक पॉइंट्स लिखे हुए मैम मैंने। हाँ, इसको आगे भी बताओ। दैट the first 5-year plan was launched by planning commission in the year 1951. At that time their main agenda, main concentration was that to increase you can say economic development. Then in 1956 again second 5-year plan was launched. At that time planning commission's main agenda was to invest on heavy industries and steel production. Then Bhilai steel plant was opened in our country. Even dam construction of dams were there. And at that time planning commission initiated and the government initiated it very well, and development projects started in our country.
ठीक है, इज इट राइट? Yes, ma'am. ओके, एनी अदर डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? आपने सारा प्लानिंग कमीशन स्टार्ट करना है 1950, फिर आपने बताना है 5 ईयर प्लान्स वर लॉन्च 51 में हुआ, सेकंड 5 ईयर प्लान बना 1956 में। उसके बाद इन 5 ईयर प्लान्स में गवर्नमेंट का एजेंडा क्या था? हैवी इंडस्ट्रीज बनाना, स्टील प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, पॉवर्टी को खत्म करना, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर आना। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमने बताना है कि दैट no doubt this initiative by the government was successful. Bhilai steel plant was started and dam projects constructions were also there. Chambal river Madhya Pradesh आपने बताना, dam was constructed, year बता देना आपने. And in this way we can say that planning commission, the role of planning commission was you can say successful in increasing the development projects in our country. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का आपने रोल बताना है कि किस तरह से प्लानिंग कमीशन हमारी कंट्री में इनिशिएट किया गया। देन व्हाट डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मीन व्हेन ही सेड दैट इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी? उन्होंने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि नो डाउट लोगों को पॉलिटिकल राइट्स तो मिल गए हैं, राइट टू वोट सबको मिल गया है, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी, लेकिन फिर भी सोशली एंड इकोनॉमिकली अभी भी कंट्री में इनइक्वालिटी है। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल गई, राइट टू वोट सबको मिल गया, लेकिन कंट्री में अभी भी इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी है। क्या मतलब है इनका? यस, रेज योर हैंड्स। क्या मतलब था उनका, इसका मीनिंग? व्हाट डिड डॉक्टर अम्बेडकर मीन व्हेन ही सेड दैट इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी? उन्होंने कहा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि नो डाउट लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल गई है, राइट टू वोट, एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में कास्ट सिस्टम जो है वो लोगों की रूट्स में बस चुका है। तो लोगों को पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल गई है, लेकिन उनको ये भी था कि पता नहीं कब तक लोगों के साथ सोशली एंड इकोनॉमिकली इनइक्वालिटीज होती रहेंगी। ठीक है, तो ये उनको एक डर था कि इंडिपेंडेंस के बाद उनको ये डर था कि जो लोअर कास्ट लोग हैं, पुअर पीपल हैं, तो वो कभी भी सोसाइटी में रिच पीपल के बराबर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कंट्री में हमेशा इनइक्वालिटी रहेगी। हाँ जी प्रबल, यस, कीप योर माइक ऑन। Yes, ma'am. हाँ जी। According to Dr. Ambedkar, political democracy must be accompanied by economic and social democracy. Second point, giving people the opportunity to vote would not necessarily eliminate others, such as those between the rich and poor or between upper and lower caste. He believed that India needed to work hard to eliminate all forms of economic and social inequity. Only then would the constitution guarantees of political equality be meaningfully otherwise India would be a land of paradoxes, adhering to the idea of one man, one vote and one value in politics, while rejecting the concept of one man, one value in economic and social life. वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल गई, राइट टू वोट सबको मिल गया, कि जब वोटिंग होते हैं तो उस टाइम पर में अमीर गरीब सब बराबर होते हैं, एक ही लाइन में सारे वोट करते हैं। ठीक है, वेदर दे आर रिच और पुअर, है ना, तो वोटिंग करते हुए वो सारे सबको एक राइट मिल जाता है। पुअर पीपल की भी उतनी ही वैल्यू है जितने की रिच पीपल की है। लेकिन उन्होंने कहा कि पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, कहने को कुछ और करने को कुछ और। इसका मतलब क्या है कि नो डाउट सबको इक्वालिटी तो मिल गई, लेकिन रियल सेंस में सोशल इक्वालिटी नहीं मिली, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं मिली। सोशल का मतलब होता है मैन और वुमेन कभी सेम सोसाइटी में जो है वो बराबर नहीं माने गए। मैन को हमेशा सैलरी ज्यादा मिलती है, वीमेन को कम मिलती है। मैन को फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, वीमेन को कम समझा जाता है। ठीक है, सोशली रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, पुअर बहुत ज्यादा पुअर हैं, रिच अभी भी बहुत ज्यादा रिच हैं, स्लम्स एरिया में पुअर पीपल रह रहे हैं। तो ये सोशल इनइक्वालिटी है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि जितने भी कंट्री में रिच पीपल हैं दे आर एंजॉइंग मोर पावर्स, एंड पुअर पीपल जो हैं उनके पास अप्रोच नहीं है, इसलिए उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। तो ये मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक डर था कि नो डाउट कंट्री में सबको इक्वालिटी तो मिल गई है, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल गई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इन पॉलिटिक्स वी विल हैव पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि उनको इक्वालिटी तो मिल गई है, लेकिन अभी भी सोशल और इकोनॉमिक, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी अभी भी नहीं है, ये इनइक्वालिटी ही है। तो ये तभी खत्म होगी जब गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से पुअर पीपल जो है उनको सपोर्ट करेगी,
ताकि कंट्री में डिफरेंसेस जो रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा गैप है उसको फिल किया जाए. क्लियर? इज इट राइट? एनी डाउट? If answer is clear, then I can ask another. If any doubt, then raise your hands. Okay, Bani, thank you. Yes. इसके बाद बच्चे next question है, after independence, why was there a reluctance to divide the country on linguistic lines? Reluctant का मतलब होता है not interested. कौन interested नहीं थे? जैसे इंडिपेंडेंस मिली, इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के बाद कौन रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, कौन इंटरेस्टेड नहीं थे कि कंट्री में स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर बनाई जाएं. फिर बाद में आंध्र प्रदेश की प्रॉब्लम आई, तब जाकर गवर्नमेंट ने फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बोर्ड बनाया, पहले नहीं. तो ये सारा आपने बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड और उसके बाद हु विल टेल? यस जयवंत, अंजविट. Yes, ma'am. Back in the 1920s, the Indian National Congress, the main party of the freedom struggle, had promised that once the country won independence, each Yes, major एक सेकंड. linguist. हाँ बेटा रुको, एक एक पॉइंट अभी बोलो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं. वेरी गुड, जयवंत ने बहुत अच्छी तरह से आंसर स्टार्ट किया है कि 1920 से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था, ठीक है, कि जब हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी, हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज होगी. इसका मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड हैव इट्स ओन प्रोविंस, कि हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप यानी कि हर लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स बनाई जाएंगी. 1920s में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाए. हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट. हाँ जी. However, after independence, the Congress did not take any steps to honor this promise. यस, सेकंड पॉइंट बता दिया कि जब इंडिपेंडेंस मिली तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया. देन थर्ड. हाँ जी. As a result of the partition of India, more than 1 million people had been killed in riots between Hindus and Muslims. यस, थर्ड फिर आपने बताना है कि रॉयट्स हुए, हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी हुई, रिलीजन लैंग्वेजेस के बेसिस के ऊपर मैनी पीपल वर किल्ड ऑफ बोथ और डिफरेंट कम्युनिटीज आल्सो. हाँ जी, थर्ड. Ma'am, fourth. हाँ जी. First two, third हो गया, fourth बोलो. हाँ जी. Both Prime Minister Nehru and Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel were against the creation of linguistic states. Yes. तो कौन अगेंस्ट थे? डॉक्टर आपने बताना है. दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू. एंड डेप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे में? वल्लभ भाई पटेल. दे वर अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. यानी कि उनका मानना था कि ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान रिलीजन के अकॉर्डिंग बट गया है. क्यों इन्होंने उस टाइम पीरियड में, क्या इनका रीजन था? इन्होंने रीजन दिया कि हम इसीलिए स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर नहीं बनाना चाहते कि ऑलरेडी इंडिया एंड पाकिस्तान रिलीजन के बेसिस के ऊपर बट गया है. ठीक है, अब आगे हम इसका बंटवारा स्टेट्स हम आगे नहीं करना चाहते, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर नहीं करना चाहते. इसीलिए उस टाइम पीरियड में उन्होंने कहा कि वी विल नॉट डिवाइड द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. उन्होंने कहा रिलीजन के अकॉर्डिंग तो बट गया है, अब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी अगर बांट देंगे तो कंट्री जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगी. ठीक है, तो ये मेन उस टाइम पे रीजन दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. तो ये आपने फिर से क्वेश्चन क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाई वाज देयर अ रिलक्टेंस टू डिवाइड द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस. क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी डिसयूनिटी के कारण मैनी मोर देन 10 लाख पीपल वर किल्ड. ठीक है, लेकिन अब ये इतने नहीं गंवाना चाहते थे. इनका ये मानना था कि अब हम आगे लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर कंट्री को डिवाइड नहीं करेंगे. अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर कंट्री को डिवाइड कर दिया तो लोग सिर्फ अपनी अपनी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में सोचेंगे, एज अ कंट्री होल के बारे में नहीं सोचेंगे. दिस वाज द रीजन. इट इज क्लियर? रेज योर हैंड्स इफ आंसर इज if any problem is there. If not, then I can ask another. Okay, thank you Avni and Bani. If answer is clear, then okay. Then next question. Give one reason why English continued to be used in India after independence. One reason देना है कि हमारी कंट्री में आफ्टर ब्रिटिश रूल स्टिल इंग्लिश वाज कंटिन्यूड. मतलब देखा जाए कि हमारी कंट्री में मोर देन 300 इयर्स तक लोगों ने स्ट्रगल किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, यानी कि ब्रिटिश स्कूल्स, इंग्लिश स्कूल्स को बॉयकॉट किया. ठीक है, और उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, इंग्लिश कंटिन्यू भी
to used. English continue रही and still we are continuing. Why? What was the reason? Yes, Prabal, very good. हाँ जी. Yes, ma'am. People from the south who did not speak Hindi were exposed to Hindi being declared the national language. If Hindi was imposed on them, they vowed to break away from India. The Constituent Assembly eventually agreed that Hindi would India's official language, but English would be used in court services and interstate communications. Yes, very good. तो वेरी गुड प्रबल, ठीक है. पहला तो रीजन आपने ये बताना है कि इंग्लिश इसीलिए कंटिन्यू रही क्योंकि हाफ ऑफ द इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है, हाफ ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स के जो लोग हैं, दे डिडंट स्पीक हिंदी, उनको हिंदी नहीं आती. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या बहुत सी ऐसी साउथ इंडियन स्टेट्स के लोगों को हिंदी नहीं आती. ये मेन प्रॉब्लम है. नंबर वन, main problem was that English continued to be in India because number one, half of the South Indian people, they didn't speak Hindi. They spoke their own languages. For example, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, है ना. तो ये बताना आपने कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, उन स्टेट्स की अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं. नदरन इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नदरन इंडिया में लोगों को हिंदी भी आती है और मदर टंग भी आती है. लेकिन जब आप बच्चे, आपको खुद प्रॉब्लम, सपोज अगर आप में से कोई साउथ इंडिया गया होगा ना, तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम आई होगी. वहां पे लोगों को या तो इंग्लिश आती है या उनको अपनी मदर टंग. तो अगर आप वहां पे जाओगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेजेस. आप तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, साउथ इंडिया में मेन प्रॉब्लम. तो दैट्स व्हाई the people of South India, they wanted that their mother tongue should be recognized. उनको, उनकी ये डिमांड थी कि उनकी मदर टंग को रिकॉग्नाइज किया जाए. और सबसे पहले ये डिमांड इन्होंने की आंध्र प्रदेश. वी वांट आंध्रा एंड तेलुगु स्पीकिंग पीपल, दे प्रोटेक्टेड देयर लैंग्वेज. फिर थर्ड आपने बताना, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंग्लिश वाज यूज्ड इन कोर्ट्स. कोर्ट्स का मतलब क्या है कि जो कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते थे, उस वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती थी. जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते थे, जो ब्रिटिशर्स नए नए लॉज पास करते थे, दैट वर आल्सो पास्ड इन इंग्लिश. सर्विसेज, सिविल सर्विस एग्जाम्स, आईएएस एग्जाम जो होता था, उसमें भी इंग्लिश का एक पेपर जरूर होता था. ठीक है, तो भी लोगों को इंग्लिश पढ़नी पड़ती थी. इवन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, यानी कि मदर टंग हर एक स्टेट की अपनी होती है, लेकिन इंटर स्टेट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक स्टेट के लोग दूसरी स्टेट के लोगों से कम्युनिकेट करते थे तो उनको उनकी मदर टंग नहीं आती थी. सपोज अब पंजाब के लोगों ने बेंगलोर के लोगों के साथ या आंध्र प्रदेश के साथ कम्युनिकेट करना होता था, तो उनको हिंदी नहीं आती थी साउथ इंडिया को, और उनको साउथ इंडिया के लोगों को पंजाबी भी नहीं आती थी. तो पंजाब के लोगों को पंजाबी नहीं, उनको साउथ इंडियन नहीं आती थी. तो ऐसे में इंग्लिश जो बनी एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज बनी, जिसमें कि इंटर स्टेट्स कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हो. तो यही रीजन था कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जब लैंग्वेज का इशू आया, तो एक तरफ तो अलग अलग लैंग्वेजेस थी, मदर टंग थी, एक तरफ पूरी कंट्री के लिए एक ऑफिशियल लैंग्वेज की जरूरत थी जो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, और एक तरफ एक ऐसी लैंग्वेज जो अलग अलग स्टेट्स को यूनाइट करे. तो इसीलिए इंग्लिश उस टाइम पर में कंटिन्यू रखी गई. एंड स्टिल टुडे हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश आज भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें इंग्लिश होती है. नेशनल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर अपनी मदर टंग की, जैसे पंजाब गवर्नमेंट, अब जैसे कोई पंजाब गवर्नमेंट का ऑफिस है, वहाँ पे पंजाबी होगी. सेंटर का ऑफिस जो होगा वहाँ पे हिंदी होगी. और पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो स्टेट्स में मदर टंग भी साथ में चलती है. तो तीनों लैंग्वेजेस साथ में चलती हैं, हिंदी भी, देन इंग्लिश भी और मदर टंग. ठीक है. हाँ जी अवनी, यस, एनी डाउट? यस बेटा, कीप योर माइक ऑन. अवनी, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस बेटा. मैम मैंने पूछना था कि इस क्वेश्चन में हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इंग्लिश वाज द इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड टू कनेक्ट टू अदर कंट्रीज इट वाज इम्पोर्टेंट टू.
हाँ, वैसे तो उन्होंने सिर्फ इंडिया का ही कहा है। गिव वन रीजन व्हाई इंग्लिश कंटिन्यू बी यूज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस का मतलब इंग्लिश कंटिन्यू क्यों रही, क्यों इंग्लिश को खत्म नहीं किया। उन्होंने ये पूछा है कि अगर ब्रिटिशर्स चले गए तो इंग्लिश को खत्म क्यों नहीं किया। एट दैट टाइम दिस वाज द मेन रीजन कि कोर्ट्स या जो सर्विसेज होती थी, इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम होता था, एंड अलग अलग स्टेट्स में कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश एक यूनाइटेड लैंग्वेज मानी गई कनेक्ट करने के लिए। दूसरी तरफ साउथ इंडिया के आधे से ज्यादा लोगों को हिंदी नहीं आती थी, और इसलिए मेन प्रॉब्लम आई कि वो लोग या तो इंग्लिश बोलते थे या फिर अपनी मदर टंग बोलते थे। सो दैट्स व्हाई यूज ऑफ इंग्लिश वाज कंटिन्यूड। इंग्लिश को खत्म नहीं किया गया, इसको कंटिन्यू रखा गया। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो कि यस, टू कनेक्ट विद द इंटरनेशनल यू कैन से बॉर्डर्स और कंट्रीज, इंग्लिश वाज यूज्ड एज अ यू कैन से कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। यू कैन राइट। ठीक है, एनी अदर डाउट? वेरी गुड अवनी, एनी अदर डाउट? Okay, one more question is there. How was the economic development of India visualized in the early decades after independence? तो ये सेम ही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इमीडिएटली अर्ली डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग सेम वही है ये प्लानिंग। तो यू कैन टेल मी द आंसर कि हाउ वाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विजुअलाइज्ड इन द अर्ली डेकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट बतानी है कि हमारी कंट्री में कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई, क्या क्या हुआ। तो नंबर 1 बताओगे? हाँ जी, प्लानिंग कमीशन। जयवंत, हाँ जी बताइए बेटा। यस, कीप माइक ऑन। Yes, ma'am. In 1950, the government set up a planning commission to Very help good, हाँ। design and execute suitable policies for economic development. 1950 में बता Second दिया point, प्लानिंग कमीशन। हाँ ठीक है, सेकंड there was a broad agreement on the mixed economy model. Here, both the state and the private sector would play important and Very good, complementary हाँ। roles in increasing सेकंड पॉइंट में production and आपने बता generating दिया, jobs. हाँ सेकंड पॉइंट में बता दिया मिक्स इकोनॉमी मॉडल, जिसमें बोथ गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर विल यू कैन से कंट्रोल द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। वेरी गुड। थर्ड फिर बताना है आपने The- 5 year प्लान्स। हाँ जी, In 1956, the second five-year plan was formulated, which focused on the development of heavy industries such as steel and on the building of large dams. These sectors would be under the control of the state. This focus on heavy industry and the effort at state regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decades. नेक्स्ट आप बता सकते हो भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट बना हमारी कंट्री। देन डैम्स वर आल्सो इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू यू कैन से गिव द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई इन द कंट्री। तो वी कैन से दैट एट दैट टाइम यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज विजुअलाइज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो थे आपके सारे जो क्वेश्चंस आपने कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट जो है ये डिस्कशन के लिए है मीराबेन वाला जो क्वेश्चन। Who was Miraban? Find out about her life and her ideas. Miraban कौन थी? She was a follower of Mahatma Gandhi and she was against the using of science and machinery because she wanted that the government should give main stress on primary education, then environmental pollution. Okay? Then third is the main stress of Miraban was that to balance the nature. She was against using science and technology. उनका ये मानना था कि immediately after independence, government should not spend too much on expenditure of science and technology. Rather than government, main motive of the government should be to protect the nature, to save the environment, to increase primary education, and to balance the nature. So that's why she wrote many articles, and she was against the using of you can say science and technology in the early years after independence. ठीक है, तो ये मेन बताया आपने। Yes, now time is over. एक क्वेश्चन रह गया हमारा, that division of Pakistan हमने बताना बांग्लादेश, कैसे बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश की हिस्ट्री। तो ये जस्ट आपका एक होमवर्क है, आपने ये बताना है बांग्लादेश, earlier Bangladesh was a part of India, you know, Bangladesh was part of India, but how this country became independent from India, India से independent कैसे बनी है बांग्लादेश,
आज बांग्लादेश एक अलग कंट्री है। अर्लियर दिस वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, हाउ बांग्लादेश बिकेम इंडिपेंडेंट। तो ये हम कल करेंगे जब हमारा नेक्स्ट पीरियड आएगा, ठीक है। और साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो कंप्लीट योर क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज, ठीक है। थैंक यू बेटा।